روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم۔ پنجاب حکومت عالمی بینک سے 12 ارب قرضہ لے گی۔ قرضہ صاف پانی، سیوریج اور دیگر منصوبوں کی تکمیل پر خرچ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 9 ارب 17 کروڑ روپے ملیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کے اندر 3 ارب 60 کروڑ کا بجٹ الگ سے دیا جائے گا۔ بلدیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم۔ پنجاب حکومت عالمی بینک سے 12 ارب قرضہ لے گی۔ قرضہ صاف پانی، سیوریج اور دیگر منصوبوں کی تکمیل پر خرچ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 9 ارب 17 کروڑ روپے ملیں گے، دوسرے مرحلے میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کا بجٹ الگ سے دیا جائے گا۔ مزید بات کریں کہ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامے، کب یہ شروع ہوگا یہ پروسیس؟ جی بالکل، پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے بلدیاتی جو مختلف پروگرام ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے عالمی بینک کا سہارا لے رہی ہے۔ اب اس کے لیے 12 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ لون بطور قرض وہ پنجاب حکومت ریسیو کرے گی عالمی بینک سے۔ اور اس پر ہمارے ذرائع کے مطابق عالمی بینک نے باقاعدہ رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو یہ قرض جو ہے وہ 2 مرحلوں میں دے گی۔ پہلے مرحلے میں 9 ارب روپے کا جو پہلی قسط ہے وہ جاری کی جائے گی، اور اس پروجیکٹ کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جو بلدیاتی نظام سے ریلیٹڈ ہیں ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، اور یہ صرف ان علاقوں میں بجٹ خرچ کیا جائے گا جہاں پر حکومت کے نمائندگان جو وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ مختلف جو علاقوں میں ہی یہ بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ وہاں پر صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے، سیوریج کے نگاہ سے آپ کا جو منصوبے بیشتر جو التوا کا شکار ہے ان کو مکمل کیا جائے، اور پارکس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دیگر جو پروگرام ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ جی علی، یہ کہیے گا کیونکہ بلدیاتی الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا بھی معاملہ اب زیر بحث ہے، تو ایسے میں اس قسم کی اسکیمیں لانچ کر کے یہ کیا اسٹنٹ تو نہیں کھیلا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا یہ پورے پنجاب کے لیے ہوگا یا کچھ متعلقہ اضلاع ہوں گے؟ جی بالکل، یہ صرف چند اضلاع کے لیے بجٹ جو ہے وہ رکھا جائے گا، جس میں جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع جو ہیں وہ ان کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے، تو یہ ہمیشہ سابق دور حکومت میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو سب خزانے کے منہ کھول کے فنڈ جو ہے وہ حلقوں میں خرچ کیے جاتے تھے۔ تو یہ وہی بالکل اسی کا برعکس ہے کہ پنجاب حکومت اب بلدیاتی نظام کے تحت جو فنڈ مہیا کرے گی ان کو فوری طور پر ان حلقوں میں خرچ کیا جائے گا جہاں پر تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار ہیں، اور جہاں پہ تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار نہیں ہوں گے تو وہاں پر بھی مزید بجٹ جو ہے وہ خرچ کر کے لوگوں کی جو ایک ہمدردی ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بظاہر تو فنڈ جو ہے وہ اسی طرح خرچ کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی انتخابات سے قبل اب 350 ارب روپے کا ایک الگ سے پنجاب حکومت نے ڈیولپمنٹ پروگرام بھی بنایا ہے، اور اس کو آئندہ مالی سال کے دوران 200 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت میں خرچ کرے گی۔ اب اسی میں بلدیاتی نظام کے تحت بھی مختلف پروگراموں پر قرض جو ہے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی عوامی فلاح کے منصوبے ان کو بروقت مکمل کیا جا سکے، کیونکہ جو نمائندگان تھے حکومتی ان کی طرف سے شکایت بھی یہی سنتے پنجاب کو دی جاتی تھی کہ ان کو بجٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں دیا جا رہا، اور اسی پر پنجاب حکومت جو ہے وہ اب متحرک ہو چکی ہے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بہتر، پروگرام پنجاب اسمبلی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، پنجاب گورنمنٹ۔ بہت شکریہ علی رامے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب میں ضلعی افسران کے تقرر و تبادلے۔ رمیز ظفر اسسٹنٹ کمشنر میاں سنو تعینات، محمد قاسم محبوب اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ تعینات، محمد اکمل اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ تعینات، اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور کامران بشیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ ماجد بن احمد اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور تعینات، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال میاں سرمد حسین کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ سولت حیات وٹو کو اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال تعینات کر دیا گیا۔ محمد عثمان اکرم اسسٹنٹ کمشنر خوشاب تعینات، اسسٹنٹ کمشنر منڈی یوسبان محمد شاہد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھکر عبدالرزاق علی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا محمد نعیم بشیر کی خدمات ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے سپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن خانیوال ذوالفقار علی خان اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا تعینات کر دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں۔ بیوروکریسی میں محمد عثمان اکرم اے سی خوشاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اے سی منڈی یزمان محمد شاہد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ اے سی بھکر عبدالرزاق علی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اے سی کہروڑ پکا محمد نعیم بشیر کی خدمات ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے سپرد کر دی گئیں۔
एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी प्रवास की हंगामी लैंडिंग हुई है। हंगामी लैंडिंग मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई है। गल्फ एयरलाइन ने रहीम यार खान के करीब इमरजेंसी कॉल दी। फ्लाइट शारजा से सियालकोट जा रही थी। फ्लाइट को रहीम यार खान के करीब मुल्तान डाइवर्ट किया गया है। खातून मुसाफिर की डिलीवरी की बिना पर फ्लाइट ने हंगामी लैंडिंग की है। खातून मुसाफिर को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी प्रवास की हंगामी लैंडिंग हुई है। हंगामी लैंडिंग मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई है। गल्फ एयरलाइन ने रहीम यार खान के करीब इमरजेंसी कॉल दी। फ्लाइट शारजा से सियालकोट जा रही थी। फ्लाइट को रहीम यार खान के करीब मुल्तान डाइवर्ट किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है जनूबी पंजाब। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस मुल्तान में कयाम करेंगे। उनके दौरा मुल्तान बारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस मुल्तान में क़याम करेंगे। 2 रोज़ा साउथ पंजाब का दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कोट अद्दू में खर हाउस भी जाएंगे, जहां पर वो ताज़ियत करेंगे। साथ ही साथ अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। अमजद, कहिएगा, बिलावल भुट्टो आज शाम पहुंचेंगे, कैसी तैयारियां हैं? कन्वेंशन भी होगा, क्या मसरूफियात रहेंगी, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब का अहम दौरा करने जा रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी शाम को बजरिया स्पेशल तैयारा मुल्तान में पहुंचेंगे और बिलावल हाउस मुल्तान में ही क़याम करेंगे। कल जो है बाकायदा तौर पे बिलावल हाउस मुल्तान में मुलाकातों का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है कि अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से और आइंदा के इंतखाबात के हवाले से जो जनूबी पंजाब के जो ओहदेदारान हैं, अरकान असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको मदऊ किया गया है कि वो कल बिलावल हाउस मुल्तान में पहुंचे और वहां पे बिलावल हाउस मुलाकातों का जो प्लान है वो शेड्यूल किया गया है। उसके बाद बिलावल हाउस से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कोट अद्दू में जाएंगे। खर हाउस में हिना रबानी खर के जो वालिद इंतकाल कर गए हैं उस हवाले से बाकायदा तौर पे ताज़ियत करेंगे कोट अद्दू में। उधर भी कुछ मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल में शामिल की गई हैं। और इससे बढ़कर जो 9 फरवरी को एक अहम जो गिलानी हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस वक्त मैं भी गिलानी हाउस मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं कि जो 9 फरवरी को वर्कर्स कन्वेंशन होगा, तकरीबन दिन 11 बजे का टाइम दिया गया है। और इसमें भी जनूबी पंजाब भर से जो ओहदेदारान हैं, जो वर्कर्स हैं, अरकान असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, इनको मदऊ किया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पे इनसे खिताब भी करेंगे। गिलानी हाउस मुल्तान के इस वक्त अगर आपको मैं मनाजिर दिखाऊं तो जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, अरकान असम्बली अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और बाकायदा तौर पर तमाम तरह इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली पंजाब अली हैदर गिलानी साहब। बताइएगा क्या कहेंगे कि अहम दौरा जनूबी पंजाब का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है ये दौरा? देखिए, ये मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब जब जहां भी जाते हैं पॉलिटिकली सोच जो उनकी है वो साथ लेके जाते हैं। और उनकी पॉलिटिकल सोच यही है कि मुल्क के अंदर जो सियासी ताकतें हैं उनको ही आगे बढ़ के जो मुश्किलात आवाम फेस कर रही है उनका जो सलूशन है वो लेके जाएं। चेयरमैन साहब जहाँ भी जा रहे हैं सलूशन लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास क्या प्लान है और हम क्या करेंगे जब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। और अवाम इस नालायक हुकूमत से तंग आ चुकी है। इस के खिलाफ अगर कभी भी जब भी आपने देखा है किसी ने मुकाबला किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उन्होंने आगे बढ़ के हमेशा इस हुकूमत को ललकारा भी है और इस हुकूमत को डिफीट भी किया है, हराया भी है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो प्लानिंग बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा पा लेंगे। और इमरान खान अब के दिन अब मेरे ख्याल में गिने जा चुके हैं। बहुत जल्दी वो इस मुल्क से मेरे ख्याल में इस मुल्क में तो नहीं रहेंगे, मुल्क से फरारी हो जाएंगे।
अजी गिलानी साहब ये बता दें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है कितने दिन के ऊपर मुश्तमिल होगा, क्या इसमें अहम सियासी शख्सियात भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अहम सियासी शख्सियात जिस तरह आपने सवाल किया है उसकी मरहून मिन्नत नहीं है। ये बात मैं आपके नाज़रीन को भी और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, उसकी जो आइडियोलॉजी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ग्राउंड का जो जाला है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी अहम शख्सियत की। अहम शख्सियात का हाल आपने देखा हुआ है, जिन्होंने हमेशा पार्टियां बदल के और लोटे बन के और आवाम का सौदा करके वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें जिनकी ज़रूरत है वो है अपने वर्कर की। हमें जिसकी ज़रूरत है वो है गरीब आवाम के साथ की, उनकी दुआओं की, और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआएं बिलावल भुट्टो साहब के साथ हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान बिलावल भुट्टो साहब ने किया है और सबसे पहला पंच इस हुकूमत को जो मारेगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। मैं समझता हूं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल है। चेयरमैन साहब हर जगह विजिट कर रहे हैं, बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, अपना KPK भी, पंजाब भी, साउथ पंजाब भी आ रहे हैं, और सिंध से जब वो 27 मार्च को निकलेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और अपने साथ अवाम का एक जमे गफीर लेके आएंगे। सर, वर्कर्स कन्वेंशन जो गिलानी हाउस में हम देख रहे हैं, तैयारियां अभी से जारी हैं, और इसमें कितने मेंबरान को मदऊ किया गया है, कितने जनूबी पंजाब भर से क्या पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनको मदऊ? लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साउथ पंजाब के ओहदेदारान हैं उनको मदऊ किया गया है, और आप देखेंगे 10 तारीख को 11 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब का जो कन्वेंशन होगा वो बहुत भरपूर होगा, और हमारी जो तैयारियां हैं उसके हवाले से हम आवाम को भी बताएंगे, और चेयरमैन साहब भी अपने खिताब में लॉन्ग मार्च के हवाले से आवाम को मोटिवेट भी करेंगे और बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के क्या मकासद हैं और किस तरह हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली हैदर गिलानी साहब तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे रोई से, और इनके मुताबिक इन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम प्लान जो है शेयर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब का अहम दौरा करने जा रहे हैं। आज शाम से ये दौरा जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। जो गिलानी हाउस के अंदर तैयारियां हैं वो शुरू हो गिलानी हाउस चुकी के अंदर हैं। वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आज शाम बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान पहुंचेंगे। गरीब महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। लोधरा में आटे की कीमत फिर से बढ़ गई। आटा 28 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों का हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा। गरीब महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। लोधरा में आटे की कीमत फिर से बढ़ गई। आटा 28 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों का हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा। हर गुजरते दिन के साथ आटे की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। आटा 2800 रुपए फी मन बिकने लगा है। मुश्ताक भुट्टा से जानते हैं। मुश्ताक, इतना महंगा आटा अवाम क्या खाए? भर में गंदम की शदीद किल्लत की एक वजह स्टॉक माफिया भी है, जिसकी वजह से शहरी योमिया 70 रुपये फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं, और 2800 रुपये फी मन आटा गंदम का जो आटा है वो चक्कियों पर इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है। आम शहरी, दिहाड़ीदार शहरी जो है वो योमिया 1 से 2 किलो आटा बामुश्किल ख़रीद पाता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा। आप बताएं, आटा खरीदने आए थे, क्या सूरत हाल है? 2800 रुपये माने से टक्की में गिनो 2 किलो गिने, 3 किलो गिने, 1.5 किलो गिने, इधर गुजारा करें। लाइट इतनी महंगी है, सोच तू ज्यादा। 65 यूनिट का बिल आ गए, वैसे 3200 रुपया। 3200 रुपये बिल भरूँ, आटा गिनूँ, घी गिनूँ, क्या करूँ? नहीं गुजारा चलता। हाँ, गुजारा बामुश्किल है। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। आप बताएं भाई साहब, आटा कैसे मिल रहा है? आटा मिलता पे नहीं, तकरीबन 2800 रुपये मन। ते बड़ी मुश्किल नाल गुजारा थींदा ते बड़े तंग थे, खड़े परेशान है। 71 साल की उम्र है, आज तक इतनी महंगाई नहीं थी जी ही साल थी है, ही हुकूमत थी है। बड़ी परेशानी के आलम में नहीं समझ आती क्या करूँ तो क्या ना करूँ। मैं 3 साल तो फालिज का मरीज हाँ। मेरी इतनी हालत खराब है कि मैं दवाई घेने करने से मजबूर हाँ। मेरा बिल 60 यूनिट का तकरीबन 3000 से 3500 है। मैं हूँ बिल भर रहा, बालों की रोजी कर रहा, क्या करा क्या ना करा, बड़े परेशान है। ये बुजुर्ग शहरी है जो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, और इससे हमने बात की है तो खून के आंसू रोता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आते हुए तमाम शहरी हुकूमत से आटा सस्ता करने की डेट कर रहे थे। शहरियों की मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। आटा है नहीं, और लोड शेडिंग ने भी तंग कर रखा है। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी खासे परेशान है। यूसी 17 के रिहायशियों का गैस की लोड शेडिंग पर खूनी ब्रिज चौक पर एहतजाज जारी है।
मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान बताइएगा। यूसी सतारा है ये और खूनीपुर का एरिया है जहां पर जो इलाका मकीनन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग जो हो रही है इनके इलाके में, इसके खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीन जो है सड़क यहाँ बेटा सूरत हाल ये है कि गैस का तो हमने नाम निशान ही नहीं सुन रहे। सुबह जो तब ले तो गैस नहीं है, शाम को जो तब नहीं है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। समझ में ये हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। जितने दुकानदार हैं सब ने पंप लगाए हुए हैं। मोहल्ला कीड़ी, दाऊद खान पीर, राजन शाह कॉलोनी, शाह खुरम, मातवा, इनका गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा और सुबह 5 बजे आता था और 6 बजे चला जाता था, अब वो भी नहीं है। बेचारे जो हैंड टू माउथ हैं उनकी तनख्वाह बिल्कुल है ही नहीं, किराए के घर पे रहते हैं, वो बेचारे इतने तंग है, इतने परेशान हैं। आज 7 दिन हो गए गैस का नाम ही नहीं है इस इलाके में। ये गैस आती नहीं है लेकिन घरों में बिल जो है वो भेज दिया जाता है। महीने का गैस का खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपए का ये कर रहे हैं। गैस जो है बहाल नहीं है इन इलाके में। यूसी सतारा है ये और यहाँ खूनीपुर पर जो है यहाँ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ गैस का बिल भेजा जाता है वहाँ घरों में गैस भी। आप आगाह कर रहे थे। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। 300 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजिर हैं। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। तनख्वाहें जारी न करने पर सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। BVH अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। 300 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजिर हैं। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। तनख्वाहें जारी ना करने पर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया गया। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के मुलाजमीन सराफा एहतजाज हैं। 300 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजिर। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। को पिछले 1 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, बल्कि पिछले साल से ये मसला आ रहा है कि इनको तनख्वाहें देर से मिल रही हैं। तो गुजारिश ये है कि इनके रेगुलाइज वाला जो पीरियड है वो भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। ठीक है, जो रेगुलाइजेशन है वो गवर्नमेंट ने लिख के दी वो भी नहीं हो रही। सारा महीना ये मेहनत कश तबका बेचारा काम करता है, ड्यूटियाँ अपनी करता है, उसके बावजूद इनको तनख्वाह हर वक्त परेशानी करके दी जाती है। ये तकरीबन साल से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हर जगह सही मिल जाती है, फिर ये जब जाते हैं हम सब तमाम लोग जाते हैं क्लर्क के पास तो क्लर्क कहता है जी MS के पास जाए, MS साहब कहते हैं जी प्रिंसिपल साहब के पास जाए, प्रिंसिपल साहब कहते हैं डायरेक्टर फाइनेंस के पास जाएँ। तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इनको यकम के यकम तनख्वाह पे करें जो इनका हक बनता है। 20,000 में इंसान का बनता ही क्या है। 25 साल से लोग यहाँ पे जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बखूबी अंदाज से यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से आप वार्ड से जाकर किसी भी जो लोग वार्ड में हैं यहाँ पर हैं आप जाकर इंतजामिया से वहाँ से पूछें कि ये लोग कैसी ड्यूटी करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली तरीके से अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। उसके अलावा हमें रुलाया जाता है और जलील किया जाता है। हमारा मुतालबा था MS साहब से, प्रिंसिपल साहब से, चेयरमैन बोर्ड साहब से और साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ साहबान से कि हमें रेगुलर किया जाए। एक तो तकरीबन 15 साल 20 साल से लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उनको ना तो कोई मराहत मिलते हैं और ना ही उन्हें टाइम पे बर वक्त तनख्वाह मिलती है और ना ही रेगुलर किया जाता है। बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं जिसकी बिना पर वो लोग बहुत परेशान हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। सफाई कंपनी में अहम सीटें खाली हो गईं। शहर में सफाई के मसाइल बढ़ गए। मुल्तान में MD वासा मैनेजमेंट कंपनी का ओहदा 1 माह से खाली है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर के पास MD का इजाफी चार्ज। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर की सीट भी खाली है। साबिका ऑपरेशनल मैनेजर दाऊद मकई को ओहदे से गुज़श्ता माह हटाया गया था। असिस्टेंट मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद 2 असिस्टेंट मैनेजर की सीटें भी खाली हैं। मुल्तान में MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर प्रोक्योरमेंट की सीट भी खाली है। अहम इंतजामी सीटें खाली होने से दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे हैं। भावनगर में अभी खाद का बहरान खत्म नहीं हुआ कि मेडिसिन की किल्लत का बहरान पैदा हो गया है। शहर और गर्दनवा के मेडिकल स्टोर से पैनाडोल टैबलेट और सिरप नायाब हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख बताइएगा। हुकूमत के दौर में बहरान पे बहरान पैदा हो रहा है। इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ मार्केट में और यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसी हैं, वहाँ पर पैनाडोल की जो गोली है वो नायाब हो चुकी है। मेडिसिन की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पैनाडोल शहरियों के लिए नायाब हो गया। तो यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद उनसे बात कर रहा है। आप बताइए कि जी पैनाडोल जो है वो क्यों गायब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत के दौर में
हर चीज़ नापैद हो चुकी है। अगर किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही उसने फसल के लिए अगर चाहिए, इस आटा नहीं मिलता गरीब आवाम को, चिकन बहुत महंगा हो गया है। अब जो अद्वियात हैं इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए 500% महंगी होने के बावजूद आवाम को नहीं मिल रही। एक पैनाडॉल जो कि गोली एक आम आवाम के लिए है वो भी नहीं मिल रही। इसलिए मैं इस हुकूमत वक्त को ये गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इस हुकूमत को चाहिए कि ये रिज़ाइन करके अपने घर जाए ताकि गरीब आदमी को इंसानी बचाने के लिए जो अद्वियात हैं वो मुहैया हो सके। ये हुकूमत इस बारे में बिल्कुल आवाम के साथ जुल्म कर रही है कि पैनाडॉल जो कि एक आम गोली है वो भी नहीं मिल रही। इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं कि इस गवर्नमेंट का कोई विज़न नहीं है, कोई इनके पास इस बारे में कानून नहीं है कि आवाम को सस्ती अशिया और ये जान बचाने वाली अद्वियात है मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है एक से बढ़कर एक बहरान पैदा होता है और जिस पर जो है हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जहां खाद को बहरान बेहतर कासिम का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू वार्ड नंबर 9 मोहल्ला मोचीवाला में मैपको इंतजामिया की नाअहली, इलाका मकीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मजीद जान लेते हैं तैमूर अतहर से। तैमूर, नंगे तार हैं, क्या किसी सानहे का मुंतजिर हैं लोग? आज बिल्कुल इस वक्त मैं वार्ड नंबर 9 और मोहल्ला मोचीवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि बिजली के बेहंगम और लटकते जो तार हैं उनकी वजह से यहाँ के रिहायशी परेशान है। खवातीन और बच्चों को गुजरने में मुश्किलात होती है, घरों से निकलना उनका मुश्किल हो गया। घरों के दरवाजे और दीवारों के ऊपर ये लटकते नंगे तारों की वजह से करंट लगने के वाकयात भी हो चुके हैं। यहाँ पे अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं और मैपको इंतजामिया को भी एप्लीकेशन दी गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद है, आप मुझे बताएगा यहाँ के रिहायशी आपके घर भी हैं, घर से निकलना कितना मुश्किल है? खवातीन के गुजरने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तारें लटक रही हैं, एप्लीकेशन दी गई है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई, क्या कहते हैं? भाईजान मसला ये है कि ये काफ़ी अरसा से है, ये आज से नहीं है। कम से कम इसको 20 से 25 साल हो गए और हम कह कह के थक गए इन लोगों को। वापडा में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग हमारी ज़रा बराबर भी नहीं सुनते। और वजह क्या है? ये तनख्वाहें नहीं लेते, वहाँ पर बैठे, ये किस वजह से बैठे? यहाँ पर बैठे ना, ये नौकरी ना करें। अगर बैठना है तो फिर यहाँ का काम करें ये लोग। अब ये देखें, ये तारें खड़ी हैं और ये देखें मेरे सर के ऊपर खड़ी हैं, हाथ भी नहीं मेरे, देखें बिल्कुल ही नीचे खड़ी हैं और बच्चों के आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। आप मुझे बताइएगा, घरों से निकलते हैं, आगे आग भी लगती है, साथ दुकानें हैं, घर है, नुकसान भी हो सकता है, तो कितनी मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ पे कोई बच्चा आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता है। यहाँ पे नीचे उतारने पर बारिश आ जाती है तो आग लग जाती है मीटरों में। और ये तारें हमारे घर के अंदर पड़ी हुई हैं, तारें, हमारा बच्चा बाहर नहीं जा सकता मकान के। अच्छा, मुझे बताएगा, आपको तो शटर भी जैसे ये स्टील का है तो इसमें भी करंट आ सकता होगा, ये तारें बेहंगम है, कितनी मुश्किल आ जाता है? बहुत मुश्किल आता है। ये देखो तारें बिल्कुल भी नीचे हैं, बिल्कुल, ये देखो बच्चे की तरह, बिल्कुल मुश्किल आता है। ये सही कर रहे हैं, बस इसको सही करा जाए, बस उनको गुजारिश है बस। आज बिल्कुल यहाँ पर जो अहले इलाका इनका यही कहना है कि बिजली के पोल जो हैं वो लगा दिए जाएं ताकि जो बिजली के तारों की जान को खतरा है। तैमूर, आपका शुक्रिया। स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर मियां मोहम्मद माजिद का स्पेशल एजुकेशन सेंटर दुनियापुर का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम देखे। अपने नुमाइंदे से जानते हैं याकूब ताहिर से। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है? मैं इस वक्त दुनियापुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर डिवीजनल ऑफिसर मियां मोहम्मद माजिद साहब ने आज यहाँ पर सरप्राइज विजिट किया और सुबह सवेरे 9 बजे ही वो यहाँ पर आकर पहुँच गए। यहाँ पर आकर जो है स्कूल के मामलात देखे, खास तौर पर क्लासरूम में गए और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी दरियाफत किया। इस वक्त मियां माजिद स्पेशल एजुकेशन सेंटर डिवीजन मेरे साथ मौजूद है, मजीद से जानते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी स्पेशल पंजाब मैडम साइमा सईद साहबा, DG पंजाब परवेज इकबाल भट्ट साहब की हदायत पर पूरे डिवीज़न में मुख्तलिफ इदारों के सरप्राइज विजिट किए जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ख़ुसूसी बच्चों की क्लास रूम्स में तालीम और तरबियत को ऑब्ज़र्व करना है और यकीन करना है कि वाकई ये बच्चों में क्लास रूम्स में बराबर उसकी तालीमी सरगर्मी जारी हैं कि नहीं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मुहैया किए जा रहे हैं उसको यकीनी बनाना है कि वाकई बच्चों को प्रॉपर इंसेंटिव्स मुहैया किए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और प्रॉपर हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो भी इदारे में स्कूल्स काउंसिल हैं उसको फ़ाल किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर तालीमी सरगर्मी को जारी रख सकें। इसके साथ साथ हमने पूरे पंजाब में एडमिशन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है ताकि जो भी इदारे के नज़दीक उस खित्ते में ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे, उसका एडमिशन कराएँ ताकि एडमिशन लेने के बाद एक मुआशरे के कारआमद शहरी साबित हो सकें, अपने लिए
इस मुआशरे के लिए इस मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि उनकी मजदूरी किसी हवाले से मजबूरी न बन सके। जी बिल्कुल, डिवीज़नल ऑफिसर मियां माजिद साहब का यही कहना था कि जो माजूर बच्चे हैं वो भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं। उन्हें की बारे में जो तालीम और तरबियत है उसके लिए खसूसियत है आला हकाम की जानिब से हदायत जारी की गई है कि उनके जो वज़ाइफ हैं, जो उनके मामलात हैं, उनके देखने के लिए इसी तरह के दौरे स्पेशल एजुकेशन सेंटर में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। यकूब अतर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नए विफाकी बजट में जनूबी पंजाब के लिए कसीर फंड मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्लानिंग डिवीजन का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से राबिता हुआ है। प्लानिंग डिवीजन इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के माबैन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुशावरत भी हुई है। कॉन्फ्रेंस में जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। साउथ पंजाब के लिए ऐलान करदा मंसूबों के लिए मेगा फंडिंग पर भी इतफाक हुआ है। 11 अजला में दोरोया शाहराहों तामीर करने के मंसूबों की निशानदही भी की गई है। इसी तरह आला क्वालिटी के लिए ज़रई बीज की सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग पर भी इतफाक हुआ है। रहीम यार खान से आम और किन्नों की बरामदात बढ़ाने के इक़दामात पर गौर हुआ है। आम के बागात के रजिस्ट्रेशन करने और तकनीकी मुआवनत फ्राहम करने का डिसीजन भी हुआ है। लाइव स्टॉक के फार्मर्स को बेहतर मौके दिलाने के लिए इक़दामात पर भी मुशावरत हुई है। जदीद स्लाटर हाउसेज, हलाल मीट प्रोडक्शन की सहूलत फ्राहम करने पर गौर व फिक्र हुई है। जानवरों की खालों के लिए जदीद प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने पर तबादला ख्याल हुआ है। दौलतस्तान और डीडी खान में हाल कॉम्प्लेक्स कायम करने का मुतालबा जायजा भी लिया गया है। जनूबी पंजाब में फिश प्रोसेसिंग प्लांट और कमर्शियल फिश फीड मिल के क्याम पर गौर हुआ है। सेहत के शोबे में सहूलियात के इजाफे और सोलराइजेशन का भी जायजा लिया गया है। कॉन्फ्रेंस में ज़ेरे बहस मंसूबों बारे एक हफ्ते में पेपर वर्क मुकम्मल करने पर इत्तफाक भी हुआ है। नए विफाकी बजट में जनूबी पंजाब के लिए कसीर फंड मुख्तस किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्लानिंग डिवीजन का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से राब्ता। प्लानिंग डिवीजन इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के माबैन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। और अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब सरकार और यूएनडी ने खवानगी बढ़ाने और साफ पानी के लिए प्लान तैयार कर लिया। 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनूबी पंजाब में पायदार तरक्की, गुर्बत के खात्मा, शरह खानगी में इजाफे और साफ पानी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और यूएनडीपी पाकिस्तान के कंट्री हेड मिस कनोट ओस्टबी ने रिपोर्ट लॉन्च कर दी। जनूबी पंजाब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और यूएनडीपी के नुमाइंदा अमारत दुरानी, उमर अखलाक मलिक और जफर कुरैशी लॉन्चिंग सेशन में शरीक हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एसडीजीज की रिपोर्ट पर अमल दरामद से ह्यूमन डेवलपमेंट का मौका मुयस्सर आएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर तौसा में मॉडल सब्जी मंडी कायम की जाएगी। डीडी खान में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की सरबराही में इजलास हुआ है। कमिश्नर ने 20 एकड़ से ज्यादा रकबे की निशानदेही के अहकाम जारी किए हैं। ज़राअत और दीगर महकमे मिलकर टास्क जल्द मुकम्मल करेंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का ऐसा कहना है। बिहार खान में गंदम की फसल अहम मरहले में पहुंच गई। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं, जिला के 5 से 6 दही इलाकों में पीली और भंवरी कंगी के मामूली हमले रिपोर्ट हुए हैं। आमिर भट्टी से जान लेते हैं। जी आमिर। झारखंड में गंदम एक अहम फसल है। इस वक्त ये कौन से मरहले में पहुंच चुकी है, जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली से। सर बताएगा कि आपका इदारा जो है, जो फसल पे बीमारियां होती हैं उसके हवाले से रिसर्च भी करता है, उनको दूर करने के हवाले से भी काम करता है। रवां साल गंदम की फसल जो है, इस पर कौन कौन सी बीमारियां जो हैं उसके खतरात लाहक हो सकते हैं या फिर उनका जो हल है वो क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खां में तकरीबन 7.5 लाख एकड़ के ऊपर काश्त है और क्योंकि रहीमयार खां में कमार भी खासे रकबे पे काश्त होता है, तो जिन इलाकों में कपास काश्त है उसमें तो गंदम जो है अब तकरीबन सिट्टे की स्टेज पे है। और कमाद वाले इलाके में जहाँ पे कमाद के बाद जो है गंदम काश्त की गई है, वहाँ पे बोटिंग स्टेज पे गंदम आ चुकी है। तो अब ये स्टेज ऐसी है कि इस पर अब आपने जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कोई बोटिंग स्टेज पे पोटाश जो है जिन्होंने पहले नहीं डाली तो वो डाल सकते हैं, वो पोटाश डालें, लेकिन नाइट्रोजन वाली खाद जैसे गुवारा है या यूरिया है ये इस्तेमाल ना करें। तो बीमारी के हवाले से बात यह है कि जो जनवरी के शुरू में 4 जनवरी को बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद जो है मौसम कुंगी के लिए साजगार हुआ था। तो कुछ इलाकों में ख़ास वैरायटियाँ जैसे शफक है या हमारी TD1 है,
जो रस्ट में इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके ऊपर जो है किसी जगह पे हमें ये रस्ट नज़र आई थी। तो हमने ज़िम्मेदार हजरात को गाइड किया कि इसके लिए स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पे जिन पत्तों के ऊपर जो है आपको कुंगी नज़र आ रही है, उन पत्तों को काटें, काट के शॉपर में डाल के इसको किसी जगह पर दफना दें, क्योंकि ये जो इसके स्पोर होते हैं किसी जगह पे बन जाते हैं, उसके बाद हवा के ज़रिए से ये फैलते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसके लिए कोई केमिकल का स्प्रे करें, ये हमारी स्टेपल फूड है, इसके ऊपर हम जहरों से हमें बचना चाहिए, तो हम इसके लिए यही तरीका अपनाएं। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे ये फैल चुकी है पूरे खेत के अंदर, तो फिर हमारे जो ज़री कारकुन है वहाँ उससे मशवरा करने के बाद जो है इसके लिए कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर किसी एक जगह पे है, कुछ पौधों पे है, तो स्प्रे करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सर, जो बारिश यानी कि मौसम बना हुआ है, अगर बारिश होती है तो ये फसल पे कौन से असरात होते हैं? हाँ, फसल जो है जिन इलाकों में पानी की कमी है और वहाँ पे जो है बहुत अच्छे असरात आएंगे, और अगर किसी जगह पे कोई नाइट्रोजन की कमी पौधों में होगी तो वो भी इसके ज़रिए से पूरी होगी। तो ये जो बारिश है फसल के लिए बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, जो बारिश है वो अगर फसलों पे जो है होगी तो उससे जो है किसानों के लिए बेहतर। आबिर भट्टी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।